This conference will now be recorded. Talking about the cloud network जो service है cloud की, this service name is VPC. VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud. एंड नाउ इसी अगर आप अजूरे क्लाउड यूज करते हैं तो अजूरे के अंदर इसी सर्विस को हम बोलते हैं वीनेट. तो VPC is a virtual private cloud. VPC provide a communication and unique IP address to all connected servers, connected resource with VPC, such as storages, databases, instances, and other. So that simple सा है कि like when you connect a two system, like this is you create a two systems in a cloud, like you create a one instance मतलब है virtual machine. The instance meaning is virtual, INSTANCE. When you connect instance 1 and you connect instance 2, that means that when you provided two machines communication between this, when you provided communication between this to this machine, the between these machines one network is work with each other and this network called a VPC. आप कभी भी दो मशीन या किसी भी चीज को कम्युनिकेट क्लाउड पे कराएंगे तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका होगा VPC के, और VPC कॉल्ड है नेटवर्क. लुक लाइक कि अगर आपको अपने घर में इंटरनेट चलाना है so you need a Wi-Fi, but it network, और इधर अगर आपको मोबाइल नेटवर्क के लिए डेटा भी आपको ऑन करना पड़ेगा तो वो भी आपको वायरलेस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराते हैं नियर बाई टावर के. सेम एज की व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन and unique VPC provide a communication and unique IP address to all connected resource. Connected source means like a server 1 and server 2. If I provide the communication between server 1 and server 2 with the help of VPC. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि हम अपना वाईफाई से लैपटॉप ऑन नेट कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट तो हो जाता पर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता. यदि हम उसी चीज को केबल के द्वारा जो करते हैं अटैच तो उससे कनेक्ट चल जाता नेटवर्क. ये फोन से क्यों नहीं, वाईफाई से क्यों नहीं चल पाता? गेटवे का चैलेंज हो सकता है, गेटवे आपका अटैच ना हो, गेटवे आईपी ना हो, डीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफी सारे चैलेंजेस. ओके सर. Now the next point, VPC provide connections between regions like guys when you search as Mumbai, Australia, US. So guys when you provide that connection, like if there the three regions is available, that means the three different location is available, and you provide a communication between all three location, like one location is available in Mumbai, that is called India, another location is available look like US, and one more location is available look like a Singapore. Now the each and every region use on VPC, each and every region use on VPC. हर रीजन का अपना एक क्या होगा गाइस, VPC होगा. Now with the help of VPC pairing, when you enable a VPC pairing between regions, you are connected with each other. आप different regions को आपस में communicate करा सकते. Got it my point? So when you enable a VPC pairing
between regions, yeah, with the help of VPC pairing, provide connections between multiple regions. Got it the point, everyone? Guys, is it clear? Yes, sir. AWS used default VPC to every region. Used IP address 172.168.0.31.0/16. So now guys remember the AWS use each and every region. आपके हर region में already एक network बना रहता है और वो आपका network होता है default VPC जिसका क्या है IP 172.31.0.0/16 से होता है। यानी कि अभी तक आपने जो भी लैब करी है, जो भी लैब्स आपने अभी तक करी हैं, तो वो लैब जो है आपने अभी जो भी कनेक्टिविटी कराई है सर्वर की वो आपने डिफॉल्ट VPC पे। बट व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड ऑन VPC, the admin create VPC as per the needed. जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिफॉल्ट नेटवर्क ही यूज करे। लाइक मेरी अदर रिक्वायरमेंट्स है, अदर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्लाउड एडमिन होगा, नेटवर्क एडमिन होगा क्लाउड का, वो क्या करेगा हमारी कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग हमारा कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट करेगा। The VPC, the default VPC provide connections between zone also. Like कि अगर मैं बात करता हूँ, हमने पहले भी बताया था कि रीजन और जोन्स क्या होते हैं। लाइक दिस इज माय वन रीजन इज अवेलेबल, लाइक दिस इज माय मुंबई लोकेशन इज अवेलेबल। In this Mumbai location, there are the 3 zones is available, like 1, 2, and 3. These are the 3 zones is available in Mumbai location. The name of these zones is like AP-SOUTS South-1A, 1B, and 1C. These are the 3 zones is available. Now that these zones also are connected with a common VPC. आपका जो default VPC है, this is a default VPC. So the all zones are connected with a default VPC zone. So by default जो एक VPC बना हुआ है उसी से आपके तीनों के तीनों zones भी क्या हैं, आपस में interconnected है। When you deploy any server in zone A or either in zone B or either in zone C, is communicate with each other because the each and every zones are connected with a common VPC, and each and every server also use a common VPC. When you create a multiple VPC in a single zone, like if you need this is your network. In this network, you create a one VPC, and this is another network. You create a 2 network in within a region, like this is your Mumbai region. Now you create a VPC1 and now the VPC2, and you create a server. You create a
server. This is like your server 1. And it's your server 2. Now the server 1 is connected. Now the server 1 is connected with VPC 1. And the server 2 is connected with VPC 2. Got it? The server 1 and server 2 are connected now. The within reason that the different VPs connected system is not connected with each other. Within reason, server connect with different reason is not communicate with each other because it's connect different VPC as well as used different range of IP addresses. तो गाइस ये जो है आपके डिफरेंट VPC से भी कनेक्टेड है एज वेल एज ये क्या कर रहे हैं डिफरेंट रेंज ऑफ IP एड्रेसेस यूज कर गॉट इट गाइस सेम रीजन में सेम जोन में भी या इट्स यूज्ड इन Mumbai always VPC create region by like this is like आपका क्या मुंबई रीजन है आपका मुंबई रीजन में you connect zone A you connect a zone A with a VPC1 it use IP 10.0.0.0/60 or either you connect VPC2 is now this VPC2 you can create in zone B and now use IP like a 20.0.0.0/60 so it's not communicate when you provide a different VPC in same location or a different location when you provide VPC in same or different location. The other word is or same region, same zone and different region, different zone. So with the help of VPC pairing, provide connection between different regions. तो गाइस आइदर कि अगर आप इनके बीच में चाहे डिफरेंट रीजन की बात मैं कर रहा हूँ सेम रीजन की बात कर रहा हूँ तो अगर आपके चाहे VPC सेम रीजन के अंदर हो चाहे डिफरेंट रीजन के अंदर हो if you provide a communication you enable a VPC pairing आपको इनके बीच में VPC pairing enable करनी पड़ेगी VPC pairing is called a routing कि आपको इनके बीच में routing enable करनी पड़ेगी तभी आपके क्या होंगे different VPCs communicate with each other. Got it at the point everyone? Guys clear है? Yes, sir. Yes, sir. What? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So after that, just a minute.
So next point is coming, how to create VPC. Guys, before creating VPC, you know the knowledge of IP address. आपको क्या होनी चाहिए? IP addressing की knowledge होना चाहिए. अगर आपको IP addressing के बारे में नहीं पता है तो आप VPC क्रिएट नहीं कर सकते. और IP addressing आप सभी ने पढ़ी रखी होगी. यस और नो गाइस, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ IP addressing? yes sir. या डेफिनेटली पढ़ा होगा. CCNA में और नेटवर्किंग में क्लाउड पे आए तो IP एड्रेसिंग परफेक्टली आप लोगों ने सभी ने पढ़ी रखी होगी. तो गाइस सिंपल सा है यहाँ पे लॉजिक. देखिए मैं एक्सप्लेन यू कि आई एम यूजिंग इन दिस सिनेरियो IPv4. शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ. IPv4 है और IPv4 के अंदर जो आपकी रेंज होती है वो रेंज होती है टोटल 0 to 255. टोटल 0 to 255 आपकी क्या होती है? रेंज होती है. और ये जो रेंज है डिवाइडेड इन 5 क्लासेस. यही रेंज आपकी कितने क्लासेस में डिवाइड होती है? डिवाइड इन 5 क्लासेस. Divided in 5 classes. Such as class A, B, C, D and E. Got it, everyone? जो भी आपकी रेंज है 0 to 255 आपके 5 ग्रुप है. लाइक 0 to 1 to 126, 120, 128 to 191, 192 to 3, 2 to 3 to 240, 239, 240 to 255. इस तरीके से करके ये आपकी 5 क्लासेस में डिवाइडेड है. नाउ की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या इंटरव्यू वाला आपको कोई भी क्लास, डज नॉट मैटर कि किस क्लास का आईपी है, कि मैंने आपको बताया था दूसरा कि IPv4 जो है इट इज अ 32 बिट्स आईपी एड्रेस. ये जो आईपी एड्रेस है ये कितने बिट्स का है? इट्स 32 बिट्स. तो गाइस रिमेंबर कि और डिवाइडेड बाय दिस 32 बिट डिवाइड इन 4 ऑक्टेट. और ये जो 32 बिट्स है कितने ऑक्टेट में डिवाइडेड है? 4 ऑक्टेट. और ईच एंड एवरी ऑक्टेट 8 बिट्स आपकी यूज होती है. यानी 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32 हो गया. दैट मीन्स कि आपको वो 0 to 255 यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट में बिटवीन 0 to 255 कोई भी वैल्यू दे सकते. वो आपको प्रीवियसली लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे कि नेटवर्किंग के कि वो कौन सी क्लास का है. मैं कोई क्लास आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपका आंसर शॉर्टकट में कैसे आए. क्योंकि अगर आप क्लासेस वाइज रखते हो ना दैट मींस ऑलवेज आप रट्टा मारोगे और आप कभी भी सबनेटिंग नहीं कर पाओगे. आप कभी भी सबनेटिंग नहीं कर पाओगे. So now guys remember कि if anyone give you the IP 10, this is हो गया फर्स्ट ऑक्टेट. डॉट उसके बाद 0.0.0 यानी कि डॉट 10 के अलावा अगले भी 3 ऑक्टेट में 0 to 255 वो कोई भी वैल्यू दे सकता है आपको. एंड नाउ स्लैश में बिटवीन 8 to 32 और आइदर मैं कहता हूं 8 to 30 वो कोई भी बिट्स आपको एलोकेट कर सकता है. यानी कि टोटल जो रेंज है वो है आपकी 0 to 255. 0 to 255 में से लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया लुक लाइक का 50.0.0.0 या आइदर मैं आपको देखता हूँ 100.0.0.0 या आइदर मैं आपको दे सकता हूँ 192.0.0.0. Got it everyone? This is called a range. Is it clear guys? सेकंड 32 बिट्स का मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ पे 19 भी दे सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 25 भी दे सकता हूँ और आइदर मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ लाइक 24 भी दे सकता हूँ. तो आई एम गिव द एनी बिट, मैं कोई भी बिट्स आपको एलोकेट करा सकता हूँ. क्लियर? नाउ
0 to 255 कोई भी वैल्यू आपके दे सकते हैं। द फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज बाय द रेंज, जो पहला ऑक्टेट है आपका वो रेंज में से आएगा। पॉइंट के बाद जो भी आप यूज करेंगे उसके हिसाब से, लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम कार या बाइक खरीदने जाते हैं तो आपका जो मीटर होता है वो 1 किलोमीटर होता है। उसके बाद आप जब गाड़ी चलाएंगे तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 किलोमीटर हो गए, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। यस और नो? सेम इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे क्या करा, लाइक अगर आपने अपना आईपी दिया लाइक 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ, तो अब आपका नेक्स्ट आईपी क्या हुआ 10.0.0.1, 10.0.0.2, और नाउ जब ये 10.0.0.255 तक पहुंच जाएगा तो आपका नेक्स्ट आईपी क्या आएगा 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? 1.1, 10.0.1.2, और फिर जब ये 10.0.1.255 तक हो जाएगा तो 10.0.2.0 से स्टार्ट। क्लियर द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Clear, Yes, sir. एंड नाउ आपका आखिरी आईपी क्या आएगा कि रेंज रुकेगी कहां पे? ये रुकेगी रेंज आपकी जब 10.255, 255, 255 हो जाएगा। क्लियर गाइस? एवरीवन? पारुल, पिंकी, Yes, पूजा, sir. राकेश। Sir. नाउ गाइस, yes, sir. ऑलवेज रिमेंबर कि इफ एनीवन गिव यू, कि अगर आपको एक और चीज मैं आपको फिक्स बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी /32 से नहीं, मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपको कोई स्लैश में 20 बिट देता है, दैट मीन 20 का मतलब है दिस इज अ ऑन बिट्स। 20 का मतलब क्या है? ऑन बिट्स। ऑन बिट्स का मतलब है कि टोटल 32 बिट्स हैं, जिसमें से आपने कितनी बिट्स ऑन कर ली? 20 बिट्स ऑन कर ली, तो ऑफ कितनी बची? 12। गॉट इट द पॉइंट? द टोटल बिट्स इज 32, स्लैश में 20 दे रखा, दैट मीन्स ऑन बिट्स ऑन बिट्स माइनस करी आपने, तो ये आपकी टोटल 12 बिट्स बच गई होस्ट के लिए। यस और नो गाइस? इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 एंड देन 4 के बाद 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। These are the 32 bits. 4 ऑक्टेट, ईच ऑक्टेट 8 बिट्स होती हैं। सो हमने क्या करा, टोटल 20 बिट्स ऑन करनी थी। सो मैंने क्या करा, पहले ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करी, दूसरे ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करी 16, नेक्स्ट ऑक्टेट की सिर्फ मैंने 4 बिट्स ही ऑन करी। सो दिस इज योर 20 बिट्स एंड नाउ दिस इज योर 12 बिट्स। द टोटल इज 20 बिट्स इज ऑन, जो 1 होती है 20 बिट्स इज ऑन and 12 bits is off. Now the find host, अगर आपको देखना है कि आपको find host करने हैं कि कितने IP /24 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कितने IP आप /24 पर कनेक्ट कर सकते हैं। So now guys remember the 2 to the power फॉर्मूला है 2 to the power n में नहीं है, थोड़ा सा चेंज करा हुआ है, NUMBER, नंबर ऑफ बिट्स। तो इसके आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स, तो यानी कि आपकी ऑफ बिट्स कितनी है? तो 2 to the power 12 करेंगे तो गाइस कितना आएगा वो बताएगा? दैट मीन्स कि अगर आप यूज करते हो /20, तो /20 पे आपके पास जो नंबर ऑफ सिस्टम्स आएंगे गाइस वो 4096 आएंगे। अगर आपको कोई दे देता लाइक का /21 का मतलब है 11 बिट्स ऑफ है, और 2 to the power 11 करेंगे तो 2048 आएगा। अगर आपको कोई दे देता है /20, दैट मीन्स की 22 का मतलब है कि 22 बिट्स ऑन करनी है, ऑफ कितनी बची 10, और 2 to the power 10 करेंगे तो 1024 आपका आएगा। अगर आपको कोई देता है /23,
दैट मीन्स कि अब आपकी 9 बिट्स ऑफ है और 2 टू द पावर 9 करेंगे तो 512। दिस इज अ फिक्स, आइदर इन किसी भी क्लास की बात कर रहा हूं, आपको सबनेटिंग बिट्स के अकॉर्डिंग सीखनी है, ना कि क्लास के अकॉर्डिंग। जो भी क्लास के अकॉर्डिंग सीखता है ना, उसको सिर्फ 3 ही सबनेट याद होते हैं, 255000, 25525500 और 2552552550, और तभी वो इंटरव्यू में जाके फंसता है। नाउ द स्लैश 24, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, डज नॉट मैटर, इज 256। देन स्लैश 25 अगर आपको कोई देता है गाइस, यूज 128 स्लैश 26। तो गाइस इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ही आपका इंटरव्यू भी क्लियर कराएगा। ये फिक्स है वर्ल्ड वाइड, ये चेंज नहीं हो सकता। स्लैश 25, 26, 27 इज 32। क्लियर गाइस, ये कैसे आ रहा है? 32 बिट्स थी टोटल मेरी। एवरीवन, Yes, sir. Clear, sir. now guys, so this is our way. नाउ गाइस, मेरी अब कंपनी की ना कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है। लाइक मेरी कंपनी कहती है कि क्रिएट अ माय कस्टम। अब हम डिफॉल्ट वीपीसी यूज नहीं करना चाहते हैं, हम क्रिएट करना चाहते हैं कस्टम वीपीसी। So now your company, like your company name is ICCP Infotech, नाम तो सुना ही होगा। ICCP म्यूट कर दीजिए सर। Infotech कर दिया मैंने। ICCP Infotech है, and this company की there are the 3 branches is available, and each and every branch need a 50 IPs। हर ब्रांच के अंदर कितने आईपी चाहिए उसको, या इधर मैं कहता हूँ ब्रांच 1 जिसमें उसको चाहिए 100 आईपी, द सेकंड ब्रांच नीड अ 50 आईपी, एंड थर्ड ब्रांच नीड अ 50 आईपी। गाइस टोटल कितने आईपीज हो गए? 200 आईपीज हो गए, यस और नो? सर सो कंपनी कौन से बिट के आईपी यूज करें कि उसको 200 आईपी मिल जाए? /24। परफेक्टली। सो आपकी कंपनी ने क्या करा, एक नेटवर्क लिया 10.0.0.0, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, और /24। 24 का मतलब है योर कंपनी बाय हाउ मेनी आईपी? 256 आईपी। क्लियर गाइस, 256 कैसे आ रहा है? द /24 से आपको पता लग रहा है। क्लियर द पॉइंट 1? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट, कि अब आपकी कंपनी को कितने आईपी रिक्वायर्ड है फर्स्ट ब्रांच के लिए? 100। तो 100 के लिए आप कौन सी बिट्स यूज करेंगे कि 100 आईपी मिल जाए? क्योंकि 256 दे देंगे तो बहुत ज्यादा आईपी जा रहे हैं ना। क्योंकि देखिए सिंपल सा है कि अगर आपको 4 रुपीज चाहिए या 3 रुपीज चाहिए, तो 3 रुपीज की करेंसी इंडिया ने नहीं बनाई। तो या तो आपको 1+2 या 1 लेने पड़ेंगे, या 5 रुपीज लेनी पड़ेंगे, 10 की करेंसी लेनी पड़ेगी, यस या नो? दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। एक्यूरेट आईपीज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मेरे को लाइक 149 रुपीज चाहिए, तो या तो मुझे 200 की करेंसी या 100 और 50 की करेंसी इस हिसाब से लेनी पड़ेगी, क्योंकि 149 का तो है ही नहीं। गॉट इट पॉइंट? सो नाउ गाइस, कि अगर मेरे को 100 आईपीएस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कौन सी बिट्स यूज करूं कि 100 आईपीएस मिल जाए? 25 रुपए। या सो आई एम यूजिंग 10.0.0.0। मेरा ग्रुप स्टार्ट हुआ, मेरी कंपनी ने इतने आईपी स्टार्ट करे, नाउ /25। 25 का मतलब है कि मेरे को यहां पर कितने आईपीस मिल रहे हैं? 128। हाउ मेनी आईपीस? 128। यानी कि मेरी कंपनी ने 10.0.0.0 से लेकर और 10.0.0.127 तक के आईपीस एलोकेट कर दिए ब्रांच 1 को। गॉट इट गाइस?
D1 इज इट क्लियर? क्योंकि आपने /25 में आया था, तो 256 में से मैं 128 आईपी तो लूंगा ना, तो मेरा आईपी अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 to 127 इज 128 आईपी। क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नहीं, सिंपल है कि अगर आपने एक बॉटल पानी लिया है और वो एक बॉटल पानी खोल के आपने 2 घूंट पी लिया है, तो दुकानदार को वापस नहीं दे सकते। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि सर मैंने जो सिस्टम जो एक्वायर्ड किया किया, तो उसके लिए सर मुझे था कि जो 100 आईपी का, 50 आईपी का, फिर अनदर इज 50 आईपी, टोटल इज 200 आईपी। ओके, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग सर मैंने 250, तो उसके अकॉर्डिंगली सर मैंने 256 आईपीज के लिए मैंने /24 तक यूज किया। या तो पहले हमने एक बड़ा ग्रुप लिया, सिंपल सा है कि आपको 4 लोगों का है, आपने पहले 200 रुपए का नोट लिया और उसमें से 2 50-50 के कर दिए और एक 100 रुपीज की करेंसी कर दी, तो 3 पार्ट में 200 रुपए को चेंज करा लिया ना। ओके, सेम एज कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 256 आईपीज है, तो 256 आईपीज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम करेंगे लाइक हमने एक ब्रांच को 128 दे दिया, क्यों? क्योंकि फ्यूचर यूज में आईपीज काम में आ सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा आईपीज लेके चलते हैं। नाउ द सेकंड ग्रुप, कि अगर वो एक बात बताइए कि अगर आपकी आईपी 127 पे फिनिश हुआ है, लाइक मैं कहता हूं कि 1 to 100 है और आपको 25 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे? 1 to 25, उसका 26 to 50 करोगे, 51 to 75, 76 to 100। सेम कि अगर आपके आईपीज 127 पे खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट ग्रुप कितने से स्टार्ट होगा? 128 से। नाउ नेक्स्ट वाले ग्रुप को कितने आईपीज चाहिए? तो 50 के लिए कौन सी बिट्स यूज करूं कि 50 आईपीज मिल जाए? 26, यानी कि 10.0.0.128 से लेकर 191। दिस इज लाइक अ ब्रांच 2 को मैंने एलोकेट कर दिया, और सेम इज 190 10.0.0.192 से लेकर 255 इस B2 को मैंने दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट वाले को 50 चाहिए और अगेन 50 के लिए मैं /26 ही यूज करूं। तो ये देखिए हर ब्रांच को यूनिक आईपीज मिले हैं। गॉट इट गाइस? हर ब्रांच को क्या मिले हैं? यूनिक आईपीज मिले। मैंने किसी भी ब्रांच को सेम आईपी तो नहीं दिए ना। यस और नो? और 256 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 256 आईपी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। 128 आईपी यहाँ पर आ गए, 64 आईपी इस लोकेशन पे आ गए और 64 आईपी इस लोकेशन पे आ गए। Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Now always when you create a network in a, इन्हीं नेटवर्क्स को गाइस हम बोलते हैं सबनेट, लाइक सबनेट 1 for HR। यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं सबनेटिंग, यानी कि सबनेट। सबनेट 2 for लाइक का सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने इतने दिए, और लाइक अ डेवलपर डिपार्टमेंट इज अवेलेबल, सबनेट 3 for डेवलपर। When you create a VPC in AWS cloud, important point बता रहा हूं guys, when you create VPC in AWS cloud, when you create VPC in AWS cloud, the AWS reserve 5 IPs to every VPC, every subnet। यानी कि VPC हर सबनेट में से कितने आईपी रिजर्व कर लेगा? 5। यानी कि अगर आपने सबनेट 1 को 128 आईपी है, तो आप कितने यूज कर सकते हो? उसमें से 123 आईपी। अगर आपने 64 आईपी एलोकेट करे हैं सेल्स को, तो ओनली 59 आईपी ही आप यूज कर सकते हो।
गॉट इट द पॉइंट? हर सबनेट में से वो कितने आईपी रिजर्व कर लेता है? 5 आईपी। हर में से, हर किसी में से अपना खुद की डिफॉल्ट बनाया हुआ है। वाई? कि पहले होता है नेटवर्क आईपी, यानी कि आपके जो आईपी की ग्रुपिंग हुई है वो कहां से कहां तक हुई है। तो अगर मैं बात करता हूं सबनेट 1 की, तो मेरा जो हमेशा फर्स्ट आईपी होता है ये मेरा नेटवर्क आईपी है, वो एक नेटवर्क आईपी रिजर्व करेगा। उसके बाद वो सेकंड आईपी रिजर्व करता है गेटवे के लिए। गेटवे यानी कि जो आपके दूसरे सबनेट से कम्युनिकेट कराएगा। लाइक अगर आप सबनेट 1 को सबनेट 2 से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो गेटवे से कराता है। और गेटवे के लिए ऑलवेज वो क्या करेगा, फर्स्ट आईपी जो होगा उसको रिजर्व करेगा। यानी कि 10.0.0 से लेके 127 एलोकेट करें, 10 वाला उसने रिजर्व कर लिया नेटवर्क ग्रुप आईडी, और 001 उसने कर दिया गेटवे। यानी कि अगर मुझे दूसरे सबनेट से कनेक्ट होना है तो मैं किस आईपी के थ्रू कनेक्टिविटी कराएगा? 10.0.0.1 के थ्रू। नाउ द अनदर इज अल्टरनेट डीएनएस और प्रेफर्ड डीएनएस। तो यहाँ पर अल्टरनेट डीएनएस के लिए भी वो रिजर्व करता है आपका 10.0.0.2 एंड 10.0.0.3। गाइस ये पूछे जाते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी भी क्या करता है, वो रिजर्व करता है, यानी कि कहां पर आपका एंड हो रहा है ग्रुप का। तो ग्रुप का एंड कहां पर हो रहा है? तो ईच एंड एवरी सबनेट AWS reserve these 5 IP। सर एक गेटवे वाला और डीएनएस वाला बताना, रिपीट कराना। गेटवे का आईपी कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो वो डिफरेंट सबनेट के साथ। गेटवे का मतलब है अगर तुम्हें अपने घर से बाहर जाना है तो गेटवे चाहिए। अगर आपके घर में गेटवे, आपको मैं एक ऐसे रूम में बंद कर दूं जहां गेटवे नहीं है, तो क्या आप एग्जिट हो सकते हो? तो कोई तो एग्जिट पॉइंट चाहिए ना। आप किसी हॉस्पिटल में या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते तो गेट नंबर 1 से एग्जिट होना है, गेट नंबर 2 से एग्जिट होना है। सेम एज डीएनएस फॉर अ डोमेन। डोमेन के लिए आपके रिजर्व होते हैं वैन कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर गाइस? सर एडीएनएस क्या और पीडीएनएस? सर ए और अल्टरनेट पी डीएनएस, प्रेफर्ड डीएनएस। कभी सिस्टम पर आईपी एलोकेट करें या नहीं करे आपने अपनी लाइफ में? तभी कह रहा हूं ना, डेवलपर्स को तो पता नहीं होगा और बीटेक वालों ने कभी डाले नहीं होंगे। सीएमडी में जाके आईपी कॉन्फिग -all। अगर आपके सिस्टम पे डीएनएस आईपी नहीं होगा ना, तो आपके सिस्टम पे इंटरनेट ही नहीं चलेगा। अगर आपको इंटरनेट चलाना है अपने सिस्टम पे तो डीएनएस आईपी और गेटवे आईपी दोनों मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलेगा ही नहीं। तो आईपी कॉन्फिग, तो यहाँ पे देखिए, और इधर मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ, ncpa.cpl। This is my network NIC network interface card, and then go to the status and then go to the detail। ये रहा आपका गेटवे आईपी और ये रहा आपके डीएनएस आईपी। अगर आपके सिस्टम, आप कोई भी सिस्टम जिसपे आप इंटरनेट चला रहे हो, ये आईपी होंगे ही होंगे। अगर इनमें से आप एक भी आईपी रिमूव कर दोगे, गेटवे आईपी हटा दोगे, तो भी आपका इंटरनेट यानी कि वैन आउटसाइड से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो गेटवे आईपी होता है आपके वाईफाई का, जो आपके सिस्टम की रिक्वेस्ट को कहां पे लेके जा रहा है? वाईफाई पे लेके जा रहा है। और डोमेन का डीएनएस का आईपी होता है आपके आउटसाइड कम्युनिकेट कराने के लिए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो अगर कभी भी आपको अपने घर के वाईफाई की एसएसआईडी या पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, तो यू कैन गो इन अ ब्राउजर। जैसे मेरा क्या है 17.172.16.0.7 है, आप अपने ब्राउजर में जाइए एंड गिव द आईपी 172.16.0.7 and now enter it as the username और पासवर्ड। इसी तरीके से अगर आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड वगैरह चेंज करनी है, एसएसआईडी है, तो आप अपने गेटवे का आईपी ब्राउजर में पेस्ट करिए, वो आईडी और पासवर्ड पूछेगा और आपके मॉडेम के बैक साइड में आईडी और पासवर्ड दोनों लिखे रहते हैं। वहां से देखिए आप इंटर करिए और अपनी एसएसआईडी और जो भी आपको वाईफाई पे सिक्योरिटीज लगानी है, कुछ ब्लॉक करना है, क्या करना है, वो सारे ऑप्शंस आपके ओपन होते हैं। क्योंकि गेटवे कॉल्ड है राउटर, वो डिवाइस जो आपका लैन और वैन यानी कि आपको और बाहर के नेटवर्क को कम्युनिकेट करा रहा है। तो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है या मॉडेम लगा हुआ है, वो गेटवे है। क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. नाउ हाउ Yes, टू sir. क्रिएट वीपीसी। अब आता है हाउ टू क्रिएट अ वीपीसी। तो गाइस वीपीसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, आई एम सेलेक्ट अ रीजन।
दिस इज माय मुंबई रीजन, यस और नो? और इन दिस मुंबई रीजन सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट करा VPC, लाइक क्रिएट VPC। तो VPC का नेम मैंने लिख दिया, लाइक का VPC नेम इज माई VPC, गॉट इट? एंड CIDR, तो जो स्लैश में स्लैश 24, 20, 21 है ना, इसको हम बोला जाता है CIDR, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। यानी कि मैंने आपको कोई क्लासेस नहीं बताई है जब ये मैंने बताया था, मैंने आपको सिर्फ रेंज बताई और स्टार्ट कर दिया है। तो CIDR का मतलब है कि आपने टोटल कितने IPs बाय करे हैं। तो नाउ गाइस आई एम बाय अ टोटल नंबर ऑफ IP इज 10.0.0/24, गॉट इट? देन उसके बाद मेरे यहाँ पर क्या है, कितने जोन्स हैं मुंबई रीजन में? 3 जोन्स हैं जो ऑटोमेटिकली बने ही हुए होंगे। किस जोन में कौन से IP एलोकेट करना चाहते हैं? तो नाउ कि मैं चाहता हूं कि लाइक SUB सबनेट 1, जिसका नेम क्या है HR, जिसकी CIDR मैंने IP रेंज क्या दिया उसको 10.0.0/25, और इसको मैं किस जोन में कनेक्ट करना चाहता हूं? AP-SOUTS South-1A के अंदर। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। Same as this is my another like sales subnet 2 is like a sales, and जिसको CIDR वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 128 और /26, इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ जॉन B के अंदर। एंड नाउ थर्ड वन इज सबनेट 3 इज लाइक अ डेवलपर, जिसको मैं एड ऑन इज इट 192/26, and now I'm connect with zone C. Clear everyone? Now your company need कि आपके HR डिपार्टमेंट को WAN एक्सेस होना चाहिए, यानी कि इन सर्वर को कोई भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सके, और बाकी अदर्स को क्या होना चाहिए? LAN एक्सेस होना चाहिए। Got it my point? Now I'm created 2 group. Now I'm created 2 root tables. I'm created 1 root table and I'm created another root table. मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप कॉल टू 2 टेबल बनाई। एक टेबल का नाम लिख दिया मैंने WAN-root टेबल, और सेकंड का मैंने लिख दिया LAN-root टेबल, एंड ऐड सबनेट 1। यहाँ पर सबनेट 1 यानी कि किसको कर दिया? HR को ऐड कर दिया, और नाउ ऐड सबनेट 2 एंड 3, यानी कि यहां पर मैंने किसको कर दिया? सेल्स को ऐड कर दिया एंड डेवलपर को ऐड कर दिया। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? So once time repeated, ये लास्ट वाला लिखा हुआ है, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ो तो। आई एम क्रिएट 2 ग्रुप, हो सकते हैं 500 आपके सबनेट्स हो, तो आप 500 गेटवे तो लगाओगे नहीं। आपने क्या करा? 2 ग्रुप बनाए, एक लैन और एक वैन। लाइक सिंपल था कि आपने 2 ग्रुप बनाए कि किसको आउटसाइड जाना है, किसको नहीं जाना है। ग्रुप ए के कैंडिडेट बाहर जाएंगे, ग्रुप बी के नहीं जाएंगे। सेम एज मैंने यहाँ पे 2 रूट टेबल क्रिएट करी, और एक को मैंने कर दिया वैन रूट टेबल नाम, और एक को दे दिया लैंड रूट टेबल। जिनको मैं आउटसाइडर कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ उस सबनेट्स को मैंने ऐड कर देना है कहां पर? वैन रूट टेबल के अंदर। और जिनको नहीं कम्युनिकेट कराना है उन सबनेट्स को कहां पर ऐड कर देना है? वैन रूट टेबल। नाउ दिस इज अ यूजर्स, और आप सभी यूजर्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। ये आपके सिस्टम्स हैं और आप सभी भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड।
नाउ गाइस सबसे पहले हम इतना पार्ट कर लेते हैं, फिर मूव टू नेक्स्ट. सो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड क्रिएट अ VPC. Now select a region, then go to the search in VPC. Click on VPC. Then your VPC. तो गाइज यहाँ पे देखना डिफॉल्ट VPC ऑलरेडी बना होगा, उसको आपको डिलीट नहीं करना है. 172 से जो बना हुआ है वो डिफॉल्ट है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जिसपे आप अभी तक लैप कर रहे थे. नाउ द क्रिएट VPC. Give the VPC name is my VPC. Give the CIDR value is 10.0.0.0/24 and now create VPC. Then now create a subnet. This is the second option is subnet. This is the default subnet is available. Now create a subnet, like select a VPC. The first subnet is called a HR. And HR को मुझे देना है WAN access. I'm just get the HR WAN. Select which zone. Zone A के अंदर है. What is the CIDR value of HR? 10.0.0.0/125. Now I'm add another subnet for like a sales. Sales को मुझे LAN access देना है और which zone B के अंदर deploy करना है as per the diagram. And what is the CIDR value? 10.0.0.128/25. अगर आपका एक सिंगल IP भी गलत है तो VPC क्रिएट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लेना. अगर आपकी ग्रुपिंग गलत है आपका VPC क्रिएट नहीं होगा, इट गिव यू द एरर. तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही ग्रुपिंग बनवाई थी. नाउ द ऐड न्यू. सो यहाँ पे 25 ना आके 26 आएगा, क्योंकि 25 मैं ऑलरेडी ऊपर एलोकेट कर चुका हूँ. नाउ देन क्लिक ऑन ऐड. नेक्स्ट ग्रुप इज लाइक डेवलपर, और इसको भी मुझे क्या देना है? LAN एक्सेस देना है. नाउ सिलेक्ट अ जोन C, और इधर आप सारे के सारे सेम जोन में भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप मल्टी जोन कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं तो मल्टी जोन में बनाएंगे नेटवर्क, और आपकी कंपनी सिंगल जोन चाहती है तो आप सिंगल जोन में बना दीजिए. चॉइस इज योर. एंड लाइक 10.0.0.192/26 एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट. और गाइस ये 3 सबनेट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए. व्हेन यू क्रिएट अ सबनेट, मैंने आपको बताया था AWS ऑटोमेटिकली रिजर्व 5 IP. क्लियर एवरीवन? Yes. Now I'm created 2 root tables and add a subnet. So I'm just click on a root table and create root tables. Give the name is my root table name is like a WAN-RT and select the VPC. The root table also connected with VPC and create root table. WAN के अंदर मुझे कौन सा सबनेट ऐड करना है? HR as per the diagram. Actions, edit subnet association and select the HR subnet and save. Now create a second root table. Again click on root tables, then create root tables. Give the name is LAN-RT. Select the VPC. Now create root table. Action, edit subnet association और select the developer and sales. इन दो को मुझे क्या देना था? LAN access. So I'm add a LAN root table. So now guys you can see there the one subnet added in a WAN and 2 subnets added in a LAN. Now this your VPC is ready. Now guys अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि now I'm create a machine. मैं यहाँ पर मशीन क्रिएट कर रहा हूँ. This is the 1, 2 and 3. तो इनमें से कौन सी मशीन आपकी आउटसाइड एक्सेस होगी? एवरीवन? सर वैन WAN वाली एक्सेस सर. वैन वाली. चलिए WAN वाली. दिमाग लगा लिया है ना सबने?
गाइस देखिए आपकी मशीन यहाँ से यहाँ पर आई और रिक्वेस्ट यहाँ पर रुक गई, सेम है यहाँ से यहाँ भी आई मशीन की रिक्वेस्ट यहाँ पे रुक गई या नहीं रुकी? देयर एनी एग्जिट पॉइंट इज अवेलेबल, अगेन कम्स इन गेटवे। मुझे यहाँ पे गेटवे भी लगाना पड़ेगा और उस गेटवे को मैं जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा वो मशीन वैन में कम्युनिकेट करेंगे। खाली नाम के बेस पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने यहाँ पे इसलिए बोला था यू कैन गिव द एनी नेम। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो वो नेम के बेस पर ले रहे हो गाइस, ऑलवेज नाम से कुछ नहीं होता, आपके नाम से तो आपके रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है, नहीं है तो सर्च करके देख लेना। तो गाइस सिंपल सा है कि वी क्रिएट अ वन गेटवे, मैं गेटवे क्रिएट करूंगा और इस गेटवे को मैं जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा वो ही मेरी क्या होगी, वैन के साथ कम्युनिकेट कराएगी। गॉट इट माय पॉइंट? वही मेरी किसके साथ कम्युनिकेट कराएगी, वैन के साथ। नाउ इफ आई कनेक्ट दिस रूट टेबल विद दिस, दैट मींस कि मेरी सेल्स और डेवलपर की टीम आउटसाइड एक्सेसिबल होंगी, और अगर मैंने इन मशीन्स को कराया इधर कनेक्ट तो मेरी HR वाली कनेक्ट होगी। तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट इंटरनेट गेट विद VPC, आपका इंटरनेट गेटवे को VPC से भी कनेक्ट होना है और एज वेल एज जिस भी सबनेट रूट टेबल से आप कनेक्ट कराना चाहते हो। तो दिस इज कॉल्ड IG, इंटरनेट गेटवे। So how to create internet gateway, how to attach internet gateway? You can see the fourth point is internet gateway, और ऑलरेडी वन इंटरनेट गेटवे बना हुआ है, ये डिफॉल्ट का है। अगर आपने डिलीट कर दिया ये तो आपका डिफॉल्ट VPC भी काम करना बंद कर देगा। तो नाउ द क्रिएट इंटरनेट गेटवे, give the name like my-IG called internet gateway and create internet gateway. Then action, first I am attached to VPC, मेरे VPC का नाम क्या है, my VPC। तो एक इंटरनेट गेटवे एक ही VPC से अटैच हो सकता है। सेकंड, गो टू रूट टेबल, और हमारे पास मल्टीपल रूट टेबल है, किस रूट टेबल के साथ अटैच करना है, वैन के साथ। आई एम सिलेक्ट अ वैन रूट टेबल, देन क्लिक ऑन रूट्स, देन क्लिक ऑन एडिट रूट्स एंड देन ऐड रूट्स 000/0, यानी कि मैंने आउटसाइड का IP दे दिया 000/0, मतलब कुछ भी हो सकता है बाहर का IP। तो गाइस 000/0 का मतलब है एवरीवन, कोई भी किसी के पास भी मेरी रिक्वेस्ट जा सकती है और एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू जो मैंने बनाया। एंड नाउ सेव चेंज। तो गाइस योर VPC इज रेडी टू यूज, आपका VPC बन चुका है। नाउ आई एम डिप्लॉय अ सर्वर। सो सर्वर डिप्लॉय करने के लिए अगेन आपको कहां जाना होगा, ये सिलेक्ट। तो आई एम जस्ट गो टू द एंड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सबसे पहले मैं सिक्योरिटी ग्रुप कर लेता हूं। एंड नाउ द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और गिव द सिक्योरिटी ग्रुप लाइक my VPC-SG, जो मैंने अपना कस्टम VPC बनाया है। नाउ अलाउ ऑल प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोटोकॉल्स अलाउ कर रहा हूं। और गाइस आई एम रिमूव इट, और देखिए यहाँ पे अब दोनों VPC आपको दिख रहे हैं। अभी तक आप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहे थे, नाउ यू कैन सेलेक्ट योर ऑन VPC एंड ऐड रूल्स, और यहाँ पर मैं कर देता हूं ऑल ट्रैफिक एनीवेयर। तो आपको पता है द सिक्योरिटी ग्रुप का पहला लेक्चर ही हमने पढ़ा था, तो हर लेक्चर में ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंस, देन क्लिक लॉन्च इंस्टेंस। जैसे आप सर्वर बनाते हैं सेम ही प्रोसेस है। सिलेक्ट अ सर्वर 2012 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आपने सिलेक्ट करा, और आइदर यू सिलेक्ट लिनक्स, सिलेक्ट हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो, नेक्स्ट, दिस इज अ योर VPC। और नाउ देखिए कि आपके तीनों सबनेट्स यहाँ पर आ गए। नाउ आई एम सिलेक्ट फॉर HR और इनेबल द पब्लिक IP गाइस। अब आपको पब्लिक IP इनेबल करना पड़ेगा, बट आप जब इनेबल करेंगे तो अब आपके चार्जेस लगेंगे इनेबल पब्लिक IP के। तो यहाँ पे जब कस्टम VPC से काम करो उसके बाद डिलीट कर देना। नाउ द नेक्स्ट 30 GB स्टोरेज, नेक्स्ट गिव द नेम इज लाइक HRVM। नाउ नेक्स्ट select existing security group जो मैंने अभी बनाया था, review and launch and select a key pair। get windows के नाम से मैं की पेयर बना रहा हूँ, either you create a new key pair। तो गाइस अगर आप यहाँ से की पेयर क्रिएट करते हैं तो इसे डॉट पैन ही बनेगी। तो लाइक मैं HR-win के नाम से की पेयर बना रहा हूँ। डाउनलोड दिस की पेयर एंड देन
launch it. Same as I'm create one more machine. मैं एक और मशीन बना लेता हूँ like a sales की. सेम ही तरीके से बनाऊंगा गाइस, कोई चेंजेस नहीं करूंगा. लॉन्च इंस्टेंस, select the operating system, Microsoft server, then next select the same hardware type T2 micro. अगर आप select करेंगे chargeable होगा. T2 is only free. Now I'm select custom VPC, and now at this time select a sales. Also I'm enable a public IP. Now next add tag like a sales VM. Now next security group, I'm select the same existing security group. Review and launch, and now I'm select a key pair HR win key pair ही मैं guys select कर रहा हूँ. Now click on and launch it. So guys I'm deploy a 2 server. अब आप दोनों में difference देखना. अगर मेरे को HR की मशीन को एक्सेस करना है तो सिंपल सा मशीन को एक्सेस करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? Select the machine, then click on connect, then click on RDP, and सबसे पहले we have generate the password. तो पासवर्ड जनरेट के बाद आप क्लिक ऑन गेट पासवर्ड, ब्राउज एंड अपलोड द प्राइवेट की HR विन जो हमने बनाई थी. नाउ डिक्रिप्ट पासवर्ड, देन कॉपी पासवर्ड, डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एंड देन क्लिक. और आप देखिए कि जो हमने मशीन बनाई थी वो मशीन मेरी एक्सेस हो जाएगी. क्लियर? ये मेरी HR वाली मशीन एक्सेस हो गई. नाउ कि अगर मैं अब सेकंड मशीन को एक्सेस करता हूं, सेल्स सेम ही प्रोसेस कर रहा हूं गाइस. आई एम जस्ट गो टू कनेक्ट, देन RDP, गेट पासवर्ड, ब्राउज, जनरेट द पासवर्ड, decrypt, copy, download remote desktop connection, click on sales. Now click on connect. It give you the error. ये आपको error देगी. Why? Because the gateway is not attached. जिस रूट टेबल के अंदर सेल्स है उसके साथ गेटवे क्या है? अटैच नहीं है. So it give you the error, and this error comes in 2 cases. Point number 1, RDP is not allowed in a security group, but हमने all traffic करा हुआ है, that means RDP तो allowed हो चुका है, but फिर भी ये error आ रहा है because the gateway is not allowed. तो जिस रूट टेबल पर ये सबनेट है उस रूट टेबल के अंदर हमने गेटवे अटैच नहीं करा हुआ, इसीलिए पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं हो रखी थी. बट गाइस रिमेंबर कि अगर आप कोई भी मशीन बनाते हो तो हर मशीन पर 2 आईपी होते हैं आपके. ये पब्लिक, तो मैंने वैन एक्सेस बंद करा है ना, लैन तो नहीं. तो आप इस प्राइवेट आईपी से इस मशीन के अंदर से आके इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? सेम ही तो उससे कनेक्टेड है वीपीसी से. तो व्हाट इज द आईपी ऑफ दिस मशीन? 175. तो 10.0.0.175. नाउ इंटर यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड वही जो मैंने वहां से कॉपी करा हुआ है. एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. तो गाइस देखिए ये मशीन मैंने कर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था विद इन रीजन if the zones are connected with common VPC, it communicate with each other. इसीलिए ये दोनों मशीन क्या है? कम्युनिकेट कर रही है. क्यों? क्योंकि ये VPC सभी क्या है? एक कॉमन VPC पर ही मशीनें बनी हुई है. और मैंने क्या चीज ब्लॉक करी है? वैन एक्सेस. वैन एक्सेस का मतलब है ऑलवेज पब्लिक आईपी. मैंने यहाँ पे जो ब्लॉक करा है वो पब्लिक आईपी से ब्लॉक करा है. इसलिए ये वाली मशीन डायरेक्ट क्या है? आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकती, बट वाया दिस मशीन एक्सेस हो सकती है. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे VPC इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज द ऑल आर द मेंबर इज अ कॉमन VPC. Clear guys, how to create VPC and how to deploy virtual machine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, and enough for today. Continue. Don't wait to any other. किसी और का आंसर का वेट मत करो, अपना आंसर बताइए.